ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر متفق عليه وزاد مسلم ولا نوع ولا غول. معزز سامعین، برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، حمد و صلوات کے بعد میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 اور بخاری مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ مہینہ جو ہم پر آپ پر سایہ فگن ہے اور جس کے اکثر حصے گزر چکے ہیں، یہ سفر المظفر کا مہینہ کہلاتا ہے. محرم کے بعد سال کا یہ دوسرا مہینہ. آج میں آپ کے سامنے عقیدے کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے دوسروں کو دینے کے مقابلے میں لینے کی زیادہ کوشش کی ہے. دوسروں پر اپنے اثرات چھوڑنے کے بجائے دوسروں کے اثرات، دوسروں کے نظریات، دوسروں کے عقائد و عملیات کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کی ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے جس نے سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا ہے. دنیا میں جتنے مذاہب آپ کو ملیں گے، ہر مذہب میں شرک کی آمیزش، شرک کی ملاوٹ کسی نہ کسی ناحیے سے آپ کو ملے گی. یہودیت میں بھی شرک ہے، عیسائیت میں بھی شرک ہے، مجوسیت میں بھی شرک ہے، اور اس طریقے سے ہندوستان میں جتنے دھرم پائے جاتے ہیں ہر دھرم میں بھی آپ کو شرک ملے گا. لیکن مذہب اسلام واحد مذہب جس نے کسی بھی حال میں شرک کو برداشت نہیں کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکلنے کے بعد جو سب سے پہلی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، قولوا
या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। मेरे बुजुर्ग दोस्तों गौर कीजिए, अल्लाह के नबी गार हिरा से निकल कर बाहर आए, लोगों से एक ही दावत दी। वो दावत क्या थी? लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तमलिकुल अरब वल अजम, अजम और अरब के बादशाह बन जाओगे। गौर कीजिए, कलमे तौहीद में कितनी ताकत है, कलमे तौहीद में कितनी जान है, कलमे तौहीद में अल्लाह ने कितनी स्पिरिट रखी है। इधर कलमा कहोगे, उधर मुल्क अजम और अरब के हुक्मरानी तुम्हारे कदमों को चूम लेगी। ये बशारत गौर कीजिए। और यही नहीं कहा तमलिकुल अरब वल अजम, कामयाब भी हो जाओगे और अरब और अजम के बादशाह भी बन जाओगे। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि वो लोग जो भेड़ और बकरियों के चराने वाले थे, वो लोग जो ऊँटों के चराने में अपनी ज़िंदगी के अक्सर लम्हात को गुजार दिया था, जब कलमे तौहीद की आवाज़ पर लब्बैक कहा तो अरब व अजम के हुक्मरान बन गए, लोगों के रहबर बन गए। ये है कलमे तौहीद की ताकत। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? या अय्युहन्नास। इसीलिए एक दूसरे मौके पर आपने फरमाया इन्ना माशरल अंबिया बनु अल्लातिन। गौर कीजिए, दीनुना वाहिद, हम अंबिया की जमात अल्लाती भाई हैं। अल्लाती भाई, अखयाफी भाई, हमारे किसी से पूछ लेना, भाइयों की 3 किस्में होती हैं। तो अल्लाती भाई अल्लाह के नबी ने कहा, क्यों कहा? दीनुना वाहिद, हम तमाम का दीन एक ही दीन है। गोया हज़रत आदम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी, जितने रसूल आए, उनकी तादाद कुछ भी रही हो, तमाम की दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत थी। और आप गौर करें कि अल्लाह के नबी जब मगार हिरा से निकले, कलमे तौहीद की दावत पेश की, इस दावत का असर क्या हुआ? अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली में इसी को वादे किया है, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मी जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन दिल में सबके बसा दी, कि एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। कलमे तौहीद की आवाज़ सुनकर अरब की सरजमीन थर्रा उठी कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। और मुशरिकीन मक्का जो 360 बुतों के पुजारी थे, उन्होंने क्या कहा? जअलल आलिहता इलाहम वाहिदा इन हाज़ा लशैउन उजाब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारे माबूदों को छोड़कर एक ही को माबूद बना दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। हिंदुस्तान की तहजीब पर आप गौर करें, हिंदुस्तान की तहजीब भी एक अल्लाह की उलूहियत पर मुतमईन नहीं है। एक अल्लाह की उलूहियत, याद रखिए, उलूहियत रुबूबियत ये 2 अलग अलग। मक्का के लोग 360 बुतों के पुजारी थे, लेकिन फिर भी रब की रुबूबियत के कायल थे। इसीलिए शाह इस्माइल शहीद दहलवी ने तौहीद की 3 किस्में अपने तक़वियतुल ईमान में लिखा है। तक़वियतुल ईमान भी याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तहलका मचाने वाली किताब तक़वियतुल ईमान। 3 किताब तौहीद की 3 किस्में, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। मक्का के लोग तौहीद रुबूबियत के कायल थे, बाकी 2 सिफ़ात के कायल नहीं थे, उलूहियत के कायल नहीं थे। क्या मतलब? उलूहियत का मतलब ये होता है कि बंदगी और इबादत की जितनी शक्लें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास हैं। अरब मक्का के लोग कहते थे नहीं, आज हिंदुस्तानी मुसलमान भी ये कहता नहीं, इबादत और बंदगी की जितनी शक्लें हैं सिर्फ अल्लाह ही के लिए नहीं हैं। इसलिए चढ़ावे भी कहीं चढ़ाता, नजराने भी कहीं करता, नज़र भी कहीं मानता। तो ये सारे तहजीब और कल्चर हमने कहाँ से लिए हैं? गैरों से। और गैरों के नतीजे में आज हमारा अक़ीदा क्या है, आज मैं इसी को वादे करने की कोशिश करूँगा। तो बतला ये रहा था कि मज़हब इस्लाम ने अक़ीदे तौहीद पर इतना ज़ोर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से गार हिरा से निकलने के बाद 12 साल तक सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही की दावत। कितने साल? 12 साल। आखिर 12 साल की वजह क्या थी? क्योंकि बरस तक 360 बुतों की इबादत और परस्तिश
उनके नाम के चढ़ावे और नजराने की वजह से ज़हन और दिमाग में जो कैफियत आ गई थी, उस कैफियत को दूर करने के लिए वक्त की ज़रूरत हुआ करती है। इसीलिए आप देखते भी हैं कि बिगाड़ने के लिए वक्त नहीं लगता, बिगड़ने के लिए, लेकिन बनाने के लिए वक्त लगता है। अभी आप नगर पालिका किसी मकान को गिराना चाहे तो 2 घंटे में साफ कर देगी, आप देखेंगे कि यहाँ मैदान पड़ा हुआ है, लेकिन उसी जगह को बनाने के लिए बरसों लग जाएंगे। अकीदे तौहीद दिल में बिठाना इतना मुश्किल था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को सिर्फ तौहीद की दावत ही पर इक्तिफा करने का हुक्म देते हुए कहा 12 साल के बाद जब मेराज का वाक़या पेश आया तो मेराज में अल्लाह ने नमाज फ़र्ज की। ये दूसरे नंबर पर। अब नमाज की फ़र्जियत ज़मीन पर नहीं की अल्लाह ने, इसमें भी एक हिकमत है और नमाज का मकाम व मर्तबा बतलाना है। तो बहरहाल बात ये कर रहा था, तौहीद ही असल है। अगर तौहीद में फ़ाल्ट आ जाए, तौहीद में कहीं भी नक़्स आ जाए, तो हमारी कैफियत क्या रहेगी? जैसे इंसान के दिल में कहीं भी नक़्स आ जाए तो उसकी ज़िंदगी के लम्हात ख़तरे में रहते हैं। कभी भी उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, कभी भी वो दुनिया से जा सकता है। यही कैफियत है हमारे ईमान की। गौर कीजिएगा, ईमान में ज़रा भी कहीं फ़ाल्ट आ गया, आपकी सारी इबादतें, आपकी सारी नेकियां, आपकी सारी रियाजतें, आपके सारे भाग दौड़ सब बेकार हो जाएंगे। कुरान आप पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकाम पर 18 नबियों का जिक्र किया, 18 नबियों का। और नबी का मुकाम क्या है वो आप जानते हैं। 18 नबियों के जिक्र करने के बाद क्या कहा अल्लाह ने? लइन अशरकू लहबत अमालुहुम, अगर ये शिरक करते तो इनके अमाल अकार तो बर्बाद हो जाते। गोया एक नबी की शान शिरक से बालातर है, लेकिन एक नबी नबूवत के मनसब पर फाइज होते हुए अगर अकीदे में फ़ाल्ट आ जाए तो नबी की नबूवत भी किसी काम की नहीं रहती, उसके अमाल जो है अमाल बर्बाद हो जाते, वो दुनिया में भी नेकियों से महरूम हो जाता। तो मेरे दोस्तों, अकीदे की इस्लाह की बड़ी अहमियत है। आज हम कदम कदम पर रुकावटों में पड़े हुए हैं कि अकीदे के मामले में हम कितने उलझे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 37 में इसी हकीकत को वाज़ेह किया। आपने तारीख पढ़ी होगी तो आपको ये मालूम है कि अरबों की गुजर बसर ज़माने जाहिलियत में किस पर थी? लूट मार पर थी। लूट मार ही उनका शेवा था। लूट मार करके लाते, घर में खाते, आराम से जब कम हो जाता फिर लूटना शुरू कर देते। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने जो साल के 12 महीने बनाए और साल के 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत के रखे, उसका अदब व एहतराम उनमें था। 360 बुतों की परस्तिश और पूजा करने के बावजूद हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल ने अपनी औलाद को जिस डगर पर छोड़ा था, उस डगर की रमक कुछ न कुछ बाकी थी। तौहीद पर थे, लेकिन तौहीद में कुछ मिलावट आ गई थी। अब चूंकि उनका गुजर बसर लूटमार पर था, 3 महीने तक पै दर पै ज़िलक़ाद, ज़िलहिज और मुहर्रम, 3 महीने तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और भूखमरी को दावत देना था। इसलिए उन्होंने यहूदियों से एक हिसाब सीखा। हमारे यहाँ यहूदियों ही का हिसाब चल रहा है। इस्लामी हिसाब आपसे अगर हम पूछें कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की कौन सी तारीख़ है तो शायद कि कम ही लोग बता पाएंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि जनवरी की कौन सी तारीख़ है तो हर कोई बतला देगा। तो ये जनवरी, ये 12 महीने जो हैं जनवरी फरवरी, ये हम बज़ाहिर तो इसको ईसाइयत की तरह मंसूब करते हैं, लेकिन ये यहूदियों का देन है। ये यहूदी महीना है। इस्लामी महीना मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल है। हिंदी महीना हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिसको चैत बैसाख वगैरह बोलते हैं। तो चूँकि 3 महीने पै दर पै कत्ल गारत गरी, लूट मार से बचे रहना और कोई रोजी रोटी के लिए भाग दौड़ न करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने यहूदियों से एक हिसाब सीखा, हिसाब कबीर। अब हिसाब कबीर क्या होता है? ज्योमेट्री देख लीजिए। ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, हाँ? ज़रा सा हिसाब होता है, उसको खींचते चले पूरा पेज भर जाता, फिर भी उसका जवाब नहीं। ये ज्योमेट्री
जामेट्री वही हिसाब कबीर है। तो हिसाब कबीर सीखा तो उन्होंने क्या किया, 12 महीने के बजाय उसको 13 महीने कर दिया। हिसाब कबीर खींच करके, हिसाब कबीर खींच करके क्या कर दिया, 13 महीने। हज का महीना जो 10 जिलहिज्जा को हुआ करता था, ये उलट पलट होने लगा 36 साल के बाद। 37वें साल में 37 ईयर्स में ये अपने वक्त पर आता था, 36 साल। अब जाहिर बात है ये उलट फेर के नतीजे का मकसद क्या था, अल्लाह ने इसी को वादे किया है, इन्नमा नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, महीनों का उलट फेर करना ये कुफ्र में ज़्यादती का सबब है, ये कुफ्र में ज़्यादती का बाइस है, महीनों का उलट फेर करना। ये महीनों की उलट फेर क्यों की गई, मैंने आपको उसकी तारीख बतला दी। और ये करता कौन था, कबीले बनु किनाना का एक शख्स जिसको जो है अबू जो है उसकी कुन्नियत थी अबू सुमामा और उसका नाम था जनादा। जनादा किनानी जिसकी कुन्नियत थी अबू सुमामा, ये अपने कौम का सरबराह था। ये हज के मौके पर आता, अरफात के मैदान में खड़े होकर के लोगों से ऐलान करता कि लोगों, इस साल सफ़र का महीना पहले है, मुहर्रम का महीना बाद में। सफ़र का महीना पहले कर देता, मुहर्रम का बाद में कर देता। वजह, अब जाहिर बात है लोग दूर दूर से हज के लिए आए हुए हैं और हज के लिए आने के बाद उनको जाने के लिए वक्त चाहिए। जैसे ज़िक़ादा का महीना ख़त्म होते ही सफ़र का शुरू हो जाएगा, लूट मार शुरू कर देंगे। ज़िक़ादा के बाद मुहर्रम का महीना, और मुहर्रम के महीने में भी लूट मार करना हराम है, तो ये उलट पलट कर देता था। और सफ़र का माना ही होता है, लुग़वी माना होता है घर खाली कर देना। चूँकि 3 महीने के बैठने के बाद जैसे मुहर्रम का महीना ख़त्म होता था, मुशरिकीन मक्का गोया अपने पूरे हथियार के साथ लैस होकर हमले के लिए तैयार हो जाते। तो लोग क्या करते, अपने घरों को खाली करके पहाड़ों पर चले जाते थे कि घर में अगर आएंगे लूट मार करेंगे तो एक आध की जान जाएगी, माल भी जाएगा, इससे बेहतर क्या घर खाली कर दो, पहाड़ों पर चले जाओ। तो सफ़र के महीने में ये लोग अपने घरों को खाली करके पहाड़ों पर जाया करते थे। वजह आपके सामने बात आ गई कि 3 महीने तक हाथ बैठे रहना। अब 3 महीने जो 9 महीने जो कमाए हैं, लूट मार के लाए हैं, उसी को रख करके खाते थे। अब 3 महीने के बाद फिर सफ़र का महीना जब शुरू होता तो लूट मार शुरू हो जाती, यही कैफियत थी। तो इन्होंने एक हिसाब निकाला। इसीलिए सन 9 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज न करते हुए आपने अपनी जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नुमाइंदा बनाकर भेजा था। और 10 हिजरी में आपने हज्जतुल वदा की, एक ही हज किया अल्लाह के नबी ने, वो भी हज्जतुल वदा कही है, आखिरी हज। आखिरी हज भी एक ही हज है। और अरफात के मैदान में आपने खड़े होकर के ऐलान किया था, इन्न ज़मान क़द इस्तदारक हयतिही यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बातुन हुरुम सलासुम मुतवालियातुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों सुन लो, ज़माना घूम घुमा कर अपनी असली जगह पर आ गया। यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। सूरह बकरा सूरह तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह ने महीनों की गिनती भी बतला दी कि महीनों की गिनती की पैदाइश आज से नहीं है। जिस दिन आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया उसी दिन महीनों की गिनती भी बतला दी, 12 महीने, और 12 महीनों के नाम भी बतला दिए गए। तो अब चूँकि 12 महीने की गिनती अपनी जगह, हिल्लत और हुर्मत अपनी जगह, लेकिन एक ज़ाती मफाद, एक अपना दुनियावी ग़रज़ की बुनियाद पर उन्होंने उलट फेर जो की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर उसकी जड़ काटते हुए कहा, इन्न ज़माना क़द इस्तदारक हयतिही, ज़माना घूम घुमा कर अपनी असली जगह आ गया। जिस दिन अल्लाह ने आसमान ज़मीन को पैदा किया था उनमें 4 महीने हुर्मत के हैं, 3 महीने पै दर पे, रजब, ज़िक़ात, ज़िलहिज, मुहर्रम। ज़िक़ात, ज़िलहिज, मुहर्रम, ये तीनों पै दर पे हैं, और एक है रजब। ये 4 महीने हुर्मत के हैं। गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ काट दी कि अब हज अपने असली वक्त पर होगा और महीने की ये लट फेर अब इस्लाम में बाकी नहीं रहेगी। और आज तक
اپنی جگہ حج اپنے وقت پر ہو رہا ہے۔ تو وہ مہینے کو الٹ پھیر کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اپنے مفاد کو حاصل کرنا۔ اسی کو اللہ نے یہاں کہا یُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ اس سے گمراہ کیے جاتے ہیں۔ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، وہ ایک سال اس مہینے کو حرام کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یہ ایک سال حلال ایک سال حرام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ نے جو 4 مہینے حرمت کے قرار دیے ہیں اس میں موافقت ہو جائے۔ یعنی کوئی کہہ دی بھئی اللہ نے تو 4 مہینے رکھے تم 3 ہی کیوں؟ تو گھما پھرا کر کے بولتے نہیں ہم بھی 4 ہی مہینے حرمت کے مانتے ہیں، لیکن آگے پیچھے سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد اللہ نے کہا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے سامنے سنوار دیے گئے۔ شیطان کیا کرتا؟ جب انسان برائی کرتا تو برائی کو سنوار کے پیش کرتا، تو جو کر رہا ہے نا بہت اچھا کر رہا ہے۔ اب آدمی کے دماغ میں بیٹھا دیا جائے کہ یہ کام بہت اچھا ہے تو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ غور کیجئے، گناہ شیطان کا کام تو ہے ہی، لیکن شیطان کو گناہ پسند نہیں ہے۔ کیا پسند ہے؟ بدعت۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَتُوبُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَلَا يَتُوبُ مِنَ الْبِدْعَةِ، اس لیے کہ انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے، بدعت سے توبہ نہیں کرتا۔ گناہ سے توبہ آپ کے دماغ میں بیٹھا دیا جائے یہ کام غلط ہے تو آپ غلط سمجھ کر کے فوراً اللہ غلطی ہو گئی گال تھپ تھپانا شروع کر دیں گے سب کے سامنے۔ اکیلے میں پہنچیں گے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کرتے۔ لیکن اگر کسی کام کو کہہ دیا جائے یہ کام کرنے پر اتنا ثواب، یہ نیکی پر، اس کا عمل کے اوپر اتنی نیکی، تو آپ یہی کہیں گے بھئی یہ ہم تو نیکی کا کام کیے ہیں تو بول رہے ہیں گناہ کا کام ہے، توبہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ آج ہماری حالت یہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے سامنے سنوار دیے گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آئیے بخاری مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، لفظ پر غور کیجیے، عربی کی فصاحت و بلاغت پر 2 ہی لفظ ہیں۔ آج اطباء نے اس لا عدوا کی جو تشریح کی ہے اور امریکیوں نے تو آج تک کر ہی نہیں سکی، اس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے کتابی شکل میں۔ 2 لفظ ہے لا عدوا، لیکن اس کو صحیح حقیقت میں بتلا نہیں سکے۔ لا عدوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوت چھات کوئی معنی نہیں رکھتی، چھوت چھات کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر بولتا ہے انفیکشن ہوتا، انفیکشن بولتے نا، اور انفیکشن کے لیے کیا کرتے کہ بھئی ٹی بی کا مریض ہے تو ہمیشہ اپنے ناک کے اوپر رومال لگائے رکھے، اس کے جو ہے جراثیم سانس کے ذریعے باہر آئیں گے، دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے، یہ تو دعویٰ کرتا۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کتنے سال بیماری میں مبتلا رکھا؟ 16 سال رکھا، اور ان کی بیوی رحمت 16 سال تک ان کی خدمت کرتی رہی۔ اگر یہ انسان کے سانس سے نکلنے والے جراثیم کا انفیکشن ہوتا تو بیوی کو تو ٹی بی میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا، کوڑ کی بیماری میں نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوئی۔ یہی دیکھ لیجئے گھر میں، اگر گھر میں کوئی ایک بچہ یا کوئی ایک آدمی مہلک بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو تو ایک گلی میں نہیں چھوڑ دیتے نا، باہر اس کی تیمارداری کرتے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے، اس کے بستر کا انتظام کرتے، اس کے لیے دوا اور کھانے پینے کا انتظام کرتے، تو کیا اس جراثیم کے انفیکشن سے سارے گھر کے لوگ بیمار ہو جاتے ہوتے؟ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے واضح کر دیا تھا لا عدوا، چھوت چھات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب ڈاکٹروں نے تو تہنیک کو کہہ دیا انفیکشن ہو جاتا، تہنیک سمجھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچے پیدا ہوتے تو آپ کے پاس لائے جاتے تھے، اللہ کے نبی کھجور چبا کر کے اور اس کو اپنی انگلی میں لے کر کے تلوے میں ملتے تھے، اس کو تہنیک کہتے ہیں۔ میں بھی جہاں جہاں جاتا ہوں تہنیک کرتا ہوں۔ ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اس سے انفیکشن ہوتا ہے، میں بولا بالکل غلط، انفیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی؟ انفیکشن کا یہ عقیدہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسلام میں 1400 سال پہلے واضح کر دیا تھا لا عدوا،
छूत छात कोई बीमारी नहीं है, छूत छात कोई हकीकत नहीं रखती। एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरे ऊँट अच्छे तंदुरुस्त थे, जंगल में चर रहे थे, एक खारसी ऊँट आया और मेरे ऊँटों को खारसी बना दिया। अल्लाह के नबी ने जवाब देने के बजाय पहले सवाल कर दिया फमन अजरबल अव्वल, उस खारसी ऊँट को किसने खारसी बनाया था? फमन अजरबल अव्वल, वो खारिश वाला ऊँट, खुजली वाला ऊँट तुम्हारे ऊँटों में आ गया जिसकी वजह से तुम्हारे ऊँटों को खुजली हो गई, तो ये बतलाओ कि पहले ऊँट को किसने खारिशी बनाया? खामोश रहा, गोया जड़ काट दी गई, बीमारी है। अल्लाह तबारक व तआला जब जिसको देना चाहे ला अदवार, कोई छूत छूत नहीं। अब आइए आपको 3 हदीसें और बयान करता चलूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी ऐसी जगह हो जहाँ ताउन की बीमारी फैली हुई हो तो वहाँ से मत निकलो, और जब तुम सुनो कि फलां जगह ताउन की बीमारी, ताउन समझते हैं ये बीमारी होती है, ताउन की बीमारी फलां जगह फैली हुई है तो वहाँ मत जाओ। अल्लाह के नबी ने जाने से और निकलने से क्यों मना किया है ना? सवाल कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना इसलिए किया था कहीं आपके एतकाद में, आपके ईमान में कमज़ोरी ये ना आ जाए कि अगर वो वहाँ ना जाता तो ना मरता, अगर वो वहाँ ना जाता तो ना मरता, अगर वो यहीं रहता तो ना मरता। जैसे बहुत एक्सीडेंट में बहुत से लोग बोलते नहीं जाता तो बच जाता है ना, ये कहते, लेकिन मौत तो वहीं आएगी जहाँ उसका वक्त लिखा हो। मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को ये मालूम नहीं कि किस सरजमीन पर उसकी मौत आएगी। मलिकुल मौत को जहाँ हुक्म है निकालने का रूह वहीं निकालेगा। आपकी रूह का कब्ज करने का हुक्म हुआ है कि आप हवाई जहाज में प्लेन में बैठे होंगे, मलिकुल मौत रूह कब्ज करेगा तो प्लेन ही में आपकी रूह निकाली जाएगी। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट चिकल थाना पर पहुंचेंगे आपकी रूह निकाल ली जाएगी। प्लेन में आप बैठेंगे, प्लेन जब उड़ेगा तभी आपकी रूह निकाली जाएगी, याद रखिएगा। इसलिए ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग, कमज़ोर ईमान और यकीन वाले लोग ये ना कहने लगें कि अगर ये यहाँ रहता औरंगाबाद में तो ना मरता, चला गया लातूर में तो मर गया। ऐसा नहीं, मौत अपनी जगह है। अल्लाह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक मौके पर सहाबे कराम की एक जमयत एक फ़ौज की शक्ल में अमवास के इलाके में पहुँची, इत्तफाक से ताउन की बीमारी हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचे और हालात को देखा कि ताउन की बीमारी बढ़ती जा रही है तो वापसी का इरादा कर लिया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अतफ़िर्रु मिन क़दरिल्लाह, आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा नहनु नफ़िर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। क्या मतलब? हमारा यहाँ आना भी अल्लाह की तकदीर में था, हमारी तकदीर में लिखा हुआ था, और यहाँ से जाना भी हमारी तकदीर में लिखा हुआ है। मतलब हम इस एतक़ाद के साथ कि यहाँ रहेंगे मर जाएंगे नहीं। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फ़ौजियों को हुक्म दे दिया कि ये जगह छोड़ के पहाड़ी पर चले जाओ, और उसके जब तक ये हुक्म हुआ तब तक सहाबे कराम की 25,000 सहाबे कराम उस ताउन की बीमारी में की लपेट में आ चुके थे। तो बतला ये रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जहाँ ताउन की बीमारी हो वहाँ मत जाओ, और जहाँ रहो और वहाँ ताउन की बीमारी फैले तो वहाँ से मत निकलो। अब ताउन की बीमारी फैली, तुम यहाँ से भागे, किसी दूसरी बस्ती में गए, वहाँ बीमारी फैल गई, वहाँ बस्ती वालों ने क्या कहना शुरू कर किया कि ये अगर ना आते तो ये बीमारी यहाँ ना आती। ये है एतक़ाद की कमज़ोरी का सबब। अल्लाह के नबी ने इसीलिए इससे मना किया। और आगे दूसरे हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया फर्र मिनल मज़दूम का फर्र मिनल असद, कोढ़ के मरीज से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। कोढ़ की बीमारी हम लोग आमतौर पर बर्स जो सफ़ेद दाग होता है उसको कोढ़ कहते हैं, वो कोढ़ नहीं, याद रखिएगा। ये बर्स की बीमारी है। कोढ़ होता है जिसमें उंगलियां कट कट के गिरती हैं, जिसको अरबी में जुज़ाम कहते हैं। ये जुज़ाम की बीमारी ये खून, फसाद खून की वजह से हुआ करती है। खून की खराबी जब आदमी के जिस्म में आ जाती है तो पहले आधा कटना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने मजदूम से भागने का हुक्म दिया। दूसरी हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख़ाज़ा बियद मज़दूम, आपने एक कोढ़ मरीज के हाथ को पकड़ा और अपनी थाली में रखा और कहा कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ।
एक तरफ भागने का हुक्म, दूसरी तरफ आप अपने साथ खिला रहे हैं। ये इशारा ये है कि अगर आपका एतकाद मजबूत है, आपके ईमान में पुख्तगी है, तो आप यही कहेंगे हम किसी के साथ भी खाएंगे कुछ नहीं होगा। बीमारी आनी होगी तो अल्लाह की मर्जी होगी, मशीयत होगी तो बीमारी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसीलिए इस्लाम ने हमको तालीम दी है, जूठा नापाक, मोमिन का जूठा नापाक नहीं होता। बहुत से लोग जूठे से भागते हैं, वो उसने गिलास में पानी पी लिया, है ना। शादियों में भी आपने देखा होगा, अगर गिलास में पानी रह जाता है तो लोग नहीं पीते, फेंक दे इसको दूसरा ला। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सुअरुल मोमिन ला यंजुस, मोमिन का जूठा नापाक नहीं होता। अब अगर कोई पी ले और उसके बाद मुंह में छाले वाले आ जाएं तो क्या कहता, मैंने फलां का जूठा पी लिया था इसलिए ये हो गया। ये एतकाद की कमज़ोरी है, और एतकाद की कमज़ोरी ही इंसान को कभी कभी अकीदे की खराबी की तरफ ले जाती है। इसलिए 1400 साल पहले ही जड़ काट दी गई। ला दुआ, छूत छात कोई माना नहीं रखती। वाला तियरता, नंबर 2, बदशुगूनी की कोई हकीकत नहीं, बदफाली की कोई हकीकत नहीं। बदफाली क्या होता है, आप पूरी तैयारी के साथ घर से निकले, सूटकेस लेकर जा रहे हैं दिल्ली, हाँ, रास्ते में बिल्ली आपके सामने से रात से काट के निकल गई, तो आप क्या कहते, सफ़र मनहूस है, सफ़र मनहूस है, सफ़र कामयाब नहीं रहेगा। बात समझ में आई। या इस तरीके से कोई जो है जानवर आपके सामने से गुजर गया, या कोई अंधा आदमी गुजर गया, तो आपके अकीदे, ये अकीदे की खराबी है, याद रखिएगा। अकीदा अगर मजबूत है, आपके रास्ते से एक बिल्ली नहीं 10 बिल्ली निकलेंगी। आप निकल चुके हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहकर घर से, आप अपने मकसद में कामयाब रहेंगे, आपका सफ़र कभी नाकाम नहीं रहेगा। वला तियरता, बदफाली, बदशुगूनी की कोई हकीकत नहीं हुआ करती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन रज़तहु तियरतु फ़क़द अशरक, मुस्नद अहमद की हदीस है, आपने फरमाया जिसको बदफाली ने वापस कर दिया, सफ़र के लिए निकला था, देखा बिल्ली रास्ता काट गई, नहीं भैया वापस जाते हैं, क्यों क्या बात है, नहीं ये ज़रूरत पेश आ गई लोगों को तो ये बतलाने के लिए, लेकिन दिल में एतकाद क्या है कि हमारा सफ़र नाकाम रहेगा, इसलिए कि बिल्ली रास्ते से काट के निकल गई है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। लोगों को क्या बतलाएंगे, वो एक चीज़ भूल गया था इसलिए वापस आ गया। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अकीदे की इस्लाह पर गौर कीजिएगा। पहली चीज़, अल्लाह के नबी ने जड़ काटी, छूत छात कोई माना नहीं रखती। दूसरे नंबर पर तियरा, बदफाली, बदशुगूनी, ये कोई हकीकत नहीं रखते, इनका कोई मफहूम नहीं हुआ करता, बस यही है लोगों के दिमाग में बैठा दिया जाता है, बदशुगूनी। अब आप भड़कल गेट से लेकर के घाटी तक जाएं तो आपको पिंजड़े में मिले हुए मिलेंगे, है ना। आप पहुँचते उंगली दिखाते, उसका अंजाम क्या है गौर कीजिए। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, सही मुस्लिम के, मन अता अर्राफन फसालहु अन शैइन ला युक़बलु लहु सलातु अर्बईन यौमन, जो किसी अर्राफ के पास आए और उससे कुछ पूछे, खाली पूछ ले, ज़रा मेरे हाथ में देखना, मेरे हाथ की लकीरें क्या बतलाती हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। गौर कीजिएगा, ला तियरता, बदशुगूनी, बदफाली, इसकी कोई हैसियत, कोई हकीकत नहीं हुआ करती। वला हामा, तीसरे नंबर पर आपने फरमाया उल्लू की कोई हकीकत, उल्लू एक परिंदा है, उल्लू एक परिंदा है, अल्लाह ने सारी मखलूक पैदा की है, उसमें एक परिंदा उल्लू को भी पैदा किया। लेकिन ज़माने जाहिलियत में जो अकीदा था, उस अकीदे की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने वला हामा कहकर जड़ काट दिया। अकीदा क्या था, किसी कातिल ने किसी को मार दिया, बेगुनाह मार दिया, मारने के बाद अगर मकतूल के वारिस कातिल से बदला नहीं ले पाते थे तो उनके दिमाग में ये बात आती थी कि मकतूल की रूह उल्लू के जिस्म में हुलूल कर गई है, और यही उल्लू अब जो है जगह जगह आकर के आवाज़ें लगाता है, और वो ये कहते थे कि उल्लू जिस घर के ऊपर आवाज़ लगा दे वो घर तबाह हो जाता है। गौर कीजिए, हिंदुस्तान में भी यही अकीदा है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुओं में भी यही नज़रिया पाया जाता है कि जिस घर पर उल्लू आकर बोल दे वो घर तबाह हो जाता है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, 1400 साल पहले शरीयत ने
जड़ काट दी थी वला हामा। ये हुलूल का लफ्ज़ आज हिंदुस्तान में आया हुआ। हिंदुस्तानी सूफियों ने ईरान से आकर के हिंदुस्तानियों के जहन को बिगाड़ने के लिए क्या किया, हुलूल और शुहूद, ये याद रखिए। हुलूल का मतलब फलां की रूह फलां के जिस्म में हुलूल कर गई, फलां की रूह फलां के जिस्म में हुलूल कर गई। यही है हिंदुस्तानी तहजीब का असर, आवागवान। ये हुलूल अरबी लफ्ज़ है जो सूफियों ने ईजाद किया और गैरों के यहाँ यही आवागवान है। आवागवान का मतलब क्या होता? आज आप किसी गैर कौम से पूछें कि एक नेक आदमी मर गया तो उसकी रूह कहाँ होगी, तो यही कहेगा उसकी रूह या तो बिल्ली की शक्ल में हो जाती है या तो बकरी की शक्ल में। गोया बकरी और बिल्ली के जिस्म में उसकी रूह हुलूल कर गई, ये कहेगा। सूफिया क्या कहते हैं? यही कि फलां की रूह फलां के जिस्म में हुलूल कर गई। यही अकीदा था 1400 साल पहले ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन मक्का का। अल्लाह के नबी ने जड़ काटते हुए कहा वाला हाँ माता, उल्लू की कोई हकीकत नहीं, यानी किसी मकतूल की रूह किसी उल्लू के जिस्म में हुलूल कर जाए, इसकी कोई हकीकत नहीं है। उल्लू अलग परिंदा है और जो है जाहिर बात है जहाँ भी आता है, जहाँ भी उसको मौका मिलता, भूखा प्यासा होता तो हर जानवर आवाज़ देता, वैसे वो भी आवाज़ देता है। लेकिन यह अकीदा रखना कि जिस घर पर उल्लू आकर के आवाज़ दे दे वो घर तबाह हो जाता, ये बिल्कुल गलत है। ये 3 हो गए। चौथे नंबर पर वला सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। आज आप हिंदुस्तान की तहजीब पर और हिंदुस्तानी मुसलमानों के अकायद पर नज़र डालिए तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिमाग में भी सफ़र के महीने को मनहूस का तसव्वुर बैठा हुआ। आज भी मुसलमानों को तालीम दी जाती है कि साल में 100 बीमारियां उतरती हैं, उन 100 बीमारियों में से 50 बीमारियां सिर्फ सफ़र के महीने में उतरती हैं। अगर आप इससे कहने वाले से ये पूछ लें कि ये किस हदीस के हवाले से बोल रहे हो, कौन सी जो है आयत में है, तो जाहिर बात है मुंह बंद हो जाएगी। इसलिए कि इसकी कोई हकीकत नहीं। वाला सफ़र का महीना मनहूस महीना नहीं है। इसलिए मुल्लाओं ने एक नमाज बता दी है कि सफ़र की पहली तारीख को मगरिब के बाद सफ़र का महीना लग जाता, तो मगरिब के बाद 2 रकात पढ़कर उन सारी बीमारियों से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। तो 2 रकात जाहिर बात है नमाज तो नमाज है ना। अब नमाज की हकीकत क्या है, इससे आपको क्या मतलब? भाई नमाज पढ़ने से भी मौलाना रोक रहे हैं, नमाज पढ़ने में क्या हरज है? यही है मुसलमानों के दिमाग में लफ्ज़ हरज बैठा दिया गया कि भाई नमाज का सवाब का, लेकिन नमाज पढ़ने की भी इजाज़त अल्लाह के नबी ने दी है तो पढ़ सकते हैं, नहीं दिए तो आइए आपको बतलाता चलूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये शख्स ईदगाह में नमाज पढ़ रहा। कहा तुझे इस नमाज के पढ़ने पर सज़ा मिलेगी, गुनाह होगा, अजाब दिया जाएगा। कहा नमाज पढ़ने पर अजाब? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में ना नमाज से पहले कोई नमाज पढ़ते थे ना नमाज के बाद कोई नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के नबी नहीं पढ़ते, तू पढ़ रहा है, गोया नबी की मुखालिफत कर रहा है। और नबी की मुखालफत करने वाले का अंजाम दुनिया में भी ख़तरा, आखिरत में भी ख़राब। तो मालूम हुआ कि हम नमाजें, एक और चीज़ आपको बतलाता चलूँ, आज हमारे यहाँ बीमारी और बता दी गई है, अव्वाबीन की नमाज मगरिब के बाद पढ़ी जाती है ना। आपने सुना होगा अव्वाबीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातुल अव्वाबीन हिना तरमुजुल फिसाल। अव्वाबीन की नमाज उस वक्त है जिस वक्त ऊँटनी के बच्चों के खुर गर्म हो जाएं। अब सर्दी का मौसम है, आप देखते होंगे कि जहाँ धूप इकट्ठा होती है दीवार उवार की आड़ में, वहाँ जानवर आके धूप खाता नहीं, इंसान तो नहीं खाता। आप लोग तो हीटर लगाए रहते नहीं, देहातों में लोग दीवार की आड़ में बैठ के धूप खाते हैं। कब तक खाते हैं? जब धूप की गर्मी उनके जिस्म को गर्मा देती है तो उठ के चले जाते। जब ऊँट अरब की सरजमीन बहुत, मक्का ख़ास तौर से मक्का की सरजमीन बहुत ठंड है, ऊँट के बच्चे धूप खाने के लिए रेगिस्तान में निकल जाते और उस वक्त तक बैठे रहते थे जब धूप की शिद्दत उनके खुरों को गर्म कर देती। रेत गर्म होती, रेत के गर्म होने की वजह से उनके खुर गर्म हो जाते, वहाँ से उठ के चले जाते। ये वक्त बतलाया अल्लाह के नबी ने अव्वाबीन का। हम कब नमाज पढ़ते हैं? मगरिब बाद।
अब आप बताइए मगरिब बाद आप नमाज पढ़ें अव्वाबीन कहकर आपको कुछ फ़ायदा होगा? सर पटकते रहिए बेवक्त। जैसे मैं कहा करता हूँ ज़ोहर की नमाज कब है? ज़वाल के बाद। ज़वाल समझते हैं? सूरज ढलने के बाद ज़ोहर की नमाज है। आप 12 बजे नमाज पढ़ लें ज़ोहर की तो नमाज होगी नहीं। क्यों? इसलिए कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज की गई है। जब मन में आए पढ़ लेने की से नमाज नहीं होती। तो बतला ये रहा था कि सफ़र के महीने में हमारे हिंदुस्तानी मुल्लाओं का नज़रिया बन चुका है कि 50 बीमारियां इस महीने में आती हैं, लिहाजा पहली तारीख को मगरिब के बाद हम अगर पढ़ कर अल्लाह से पनाह मांग लें तो इन बीमारियों से बच जाएंगे। दलील कुछ नहीं। मालूम हुआ वाला सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। सिर्फ सफ़र ही के महीने को नहीं बल्कि बाद लोगों ने तो हदीसें गढ़ी। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरतुल मौज़ूआत एक किताब है, उसमें 2 हदीसें नकल की हैं। पहली हदीस कि सफ़र के महीने का आखिरी बुध ये बड़ा मनहूस दिन है। आखिरी बुध भी आपके यहाँ हिंदुस्तान में इसका नज़रिया पाया जाता है कि सफ़र का आखिरी बुध ये मनहूस है। किस माना करके मनहूस है? इस माना करके कि इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई, लिहाजा ये दिन मनहूस। जिस दिन अल्लाह के नबी की बीमारी शुरू हुई वो दिन मनहूस। एक तबका तो ये है कि ये बुध को मनहूस मानता। इसी में मुसलमानों में दूसरा तबका भी जन्म ले चुका है जो कहता है कि ये बुध का दिन बहुत अच्छा दिन है, इसलिए वो इस दिन क्या करता, पिकनिक लेकर अपने घर वालों को पिकनिक में जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमारी से सेहतयाब हुए थे तो अपनी बीवियों को गार्डन ले गए थे पिकनिक मनाने के लिए, लिहाजा हम भी पिकनिक मनाते। अगर आप उससे ये पूछ बैठें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमारी में मुब्तला हुए तो आप तो अल्लाह रफ़ीक़ आला से जा मिले, कब शिफा याब हुई थी? नहीं समझी। इसीलिए मौलाना जो है सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलमीन में, मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब अर्रहीकुल मख्तूम में और अल्लामा इब्न खुल्लदून ने तारीख़ इब्न खुल्लदून में ये वाज़े किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी 28 या 29 सफ़र पीर के दिन से शुरू हुई थी, एक जनाजे की नमाज से वापसी के वक्त। गोया बुध का दिन था ही नहीं। गौर कीजिएगा, बुध का दिन था ही नहीं और उसके बावजूद बुध के दिन को मनहूस समझा जाता है। याद रखिएगा सारी रवायतें मनगढ़ंत हैं। इसीलिए 2 हवाले मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तमाम दिन अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, कोई दिन फी नफ्सिही न मनहूस है, न किसी को नफ़ा दे सकता न किसी को नुकसान दे सकता। अगर कोई जो है बदफाली के ख्याल से बुध के दिन को मनहूस समझकर छोड़ता है और नुजूमियों के एतकाद रखता है तो ये उसके लिए सख्त हराम है। अल्लामा आलूसी कहते हैं, अल्लामा मनावी का ये कहना है, अल्लामा आलूसी कहते हैं सारे दिन यकसा हैं, कोई किसी बुध की कोई तखसीस नहीं। रात और दिन में कोई घड़ी ऐसी नहीं है जो किसी के लिए नफ़ा बख्श और किसी के लिए नुकसानदेह हो। एक ही घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला किसी के लिए वो घड़ी मुआफ़िक बना देता है और किसी के लिए नामुआफ़िक बना देता है। इसलिए दिन मनहूस नहीं, कोई महीना मनहूस नहीं। अब कुछ लोग दिन की नहूसत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद पर आई हुई तबाही को के हवाले से पेश करते हैं कि कौम आद पर अल्लाह ताला ने 7 रात 8 दिन तक हवाओं को मुसल्लत कर दिया था। कुरान ने वहाँ क्या कहा, फारसलना अलैहिम रिहन सरसरन फी अय्यामिन नहीसातिन लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया वल अज़ाबुल आख़िरति अख़ज़ा व हुम ला युनसरून। सूरह मीम सजदा आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को वाज़ेह किया, हमने उन पर तेज़ तुंद हवाओं को भेज दिया मनहूस दिनों में। तो लोग ये दलील पेश कर सकते हैं कि कुरान खुद कह रहा मनहूस दिनों में। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो दिन मनहूस थे तो कितने दिन हवा चलती रही? 7 रात 8 दिन, है ना। 8 दिन तक वो मनहूस हवा चलती रही कौम आद के लिए। अगर ये दिन मनहूस होते तो उस वक्त इस रूए ज़मीन पर जितनी इंसानी आबादी थी वो हवा सबको तबाह करती। नहीं समझे? जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो तूफ़ान आया था
उस तूफान ने पूरी रुए ज़मीन को कुफ्र और शिर्क से धो डाला था। कितने लोग बचे थे जो कश्ती में सवार। अगर ये कौम आद पर आने वाले आज़ाब जिन दिनों में आए थे वो मनहूस थे, तो जिस तरह कौम आद तबाह बर्बाद कर दी गई, उस वक्त उस रुए ज़मीन पर जितने बसने वाले होते सबको तबाह बर्बाद कर दिया जाता, इसलिए कि वो दिन सबके लिए मनहूस थे। लेकिन वो दिन सिर्फ कौम आद ही के लिए मनहूस रहे, बाकी और कौमें अपनी जगह अमन शांति में रहीं। ये इशारा है कि वो दिन उनके लिए मनहूस थे, इसलिए कि उनकी बदआमली के नतीजे में उन दिनों में अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब को भेज कर उनको तबाह बर्बाद कर दिया, ना कि वो दिन फी नफ्सी मनहूस थे। अगर वो मनहूस होते तो सारी कौम को तबाह कर दिया जाता। अब उसके बाद अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये तो बुखारी की हदीस है 4, लादवा वला तियरता वला हामता वला सफ़र। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 2 अल्फाज और नकल किए हैं, उसी को वाज़े करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, वक्त हो रहा है। वला नौ, नक्षत्र कार्तिकी कोई हैसियत नहीं रखते। ये नक्षत्र क्या होता, आप कभी सुनते होंगे कि बारिश होती है जब कोई सितारा किसी दूसरे अपनी जगह में पहुंच जाता। ये बारिश सितारों के ज़रिए से होती है, यही है कार्तिकी कहिए या नक्षत्र कहिए। अगर आपको और ज़्यादा वाज़े करना है तो आप बुड्ढी लेन चौरस्ते पर जाइए, वहाँ नशेमन एक पर्चा मिलता है, बंगलौर से निकलता है। नशेमन के आखिरी सफ़े पर सितारों की गर्दिश कालम बना होता है। सितारों की गर्दिश यानी गोया सितारों की गर्दिश से ये ज़माने में उथल पथल है। नशेमन वाला गोया आपके अकीदे को ख़राब करने के लिए दावा कर रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में सितारों की गर्दिश से हो रहा है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले जड़ काट दी का वाला नौ, ये सितारों की गर्दिश, सितारों की दौलत की वजह से न बारिश होती, न इनकी वजह से कोई अज़ाब आते, न इनकी वजह से कोई तबाही होती। आइए दलील, हज़रत ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इस सुलह हुदैबिया की रात सन 6 हिजरी में हुदैबिया का वाक़या पेश आया था। सुलह हुदैबिया की रात में बारिश हुई। सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अतदरून मा क़ाल रब्बुकुम, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या कहा? क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम, तो सहाबे कराम ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया तुम्हारे रब ने कहा कि आज सुबह कुछ लोग मोमिन हुए, कुछ लोग काफिर हुए। जिन लोगों ने कहा कि बारिश अल्लाह ने बरसाई है, सितारे का इसमें कोई दखल नहीं है, वो अल्लाह पर ईमान लाए, सितारों का इनकार किया। और जिन लोगों ने ये कहा कि फलां सितारे के फलां ब्रिज में जाने की वजह से बारिश हुई है, तो इसने अल्लाह का इनकार किया, सितारे पर ईमान ले आया। गोया ये अकीदा रखना कि फलां सितारे की वजह से, फलां सितारे में गर्दिश आने की वजह से कैफियत होती है, बिल्कुल अकीदतन गलत है। हाँ, हालात बदलते हैं, पलटियाँ हालात पलटी खाती हैं, और ये इंसान के अपने अमाल के नतीजे हुआ करते हैं। कुरान ने इसको खुद वाज़े किया है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये ज़माने की गर्दिशें हैं जो हम लोगों के दरमियान उलट फेर करते रहते हैं। आपके यहाँ लाइब्रेरी में एक किताब होगी सुनहरे नुकूश, ये अब्दुल मालिक जो है मुजाहिद, जो रियाज में कुतुब खाना चलाते हैं, उनकी लिखी हुई किताब है। इसमें एक वाक़या है, मैं आपको बतलाता चलूँ। ज़माने के हालात हर एक के साथ यकसा नहीं रहते, इसलिए बहुत से लोग जो समझदार होते हैं वो कहते हैं भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं रहती, यानी दिन हमेशा सबके लिए यकसा नहीं रहते। आइए बतलाता चलूँ, ये ज़माने की गर्दिश है जो लोगों के दरमियान हम उलट फेर करते रहते हैं। एक औरत का वाक़या लिखा उन्होंने कि एक औरत अपना वाक़या बयान करती है कि मेरी शादी एक अच्छे खुशहाल घराने में हुई। मियाँ बीवी दोनों खुशहाल थे, शौहर का कारोबार भी अच्छा चल रहा था, ज़ाती मकान भी था। इत्तफाक की बात, एक दिन मैंने बेहतर अच्छा खाना पकाई, दस्तरखान लगाया, मियाँ बीवी बैठे थे खाने के लिए कि इतने में बाहर फ़कीर ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह के नाम पर खाना दे दो। मेरे शौहर उठे और गुस्से में जा करके उसको 2 लात मार करके हकाल दिया और कहा कि बस यही टाइम रहता है इन लोगों के आने का, क्योंकि आइडिया लगाए रखते हैं बैठे खाने का टाइम होगा, है ना। उसके बाद वो चला गया और ये जो है आए वापस खाना खाए, लेकिन हालात में तब्दीली आनी शुरू हो गई, कारोबार तबाह हुए
उसके बाद घर बेच दिया। घर बेचने के बाद उन्होंने मुझे तलाक भी दे दी और मैं अपने मायके आ गई। हालात इस कदर पलटी खाए कि उनको किसको लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने मायके आई और मायके में इद्दत गुजारने के बाद कुछ दिनों के बाद मैंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी भी मेरे अच्छे जो है हालात में गुजर रहे थे। वो शौहर को भी अल्लाह ने खूब नवाजा था। इत्तफाक की बात, एक दिन मैंने वैसे ही खाना जैसे पहले पकाई दस्तरखान पर लगाया। मियाँ बीवी दोनों बैठे थे खाने के लिए कि फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पर खाना खिला दूँ। मेरे शौहर ने फ़ौरन तमाम खानों में से थोड़ा थोड़ा लेकर एक प्लेट में रखा और ले जा कर के मुझको कहा कि ले जाके फ़कीर को दे आओ। जब मैं वो प्लेट लेकर के दरवाजे पर पहुंची तो मैं चीख मारी। मैं इतनी ज़ोर से चीखी कि हमारे शौहर अंदर से भागती हुई आए और मुझे संभाल के ले गए और वो फ़कीर अपना खाना लेकर जा चुका था। मुझसे कहने लगे, आखिर क्या बात है, तुम इतनी ज़ोर चीखी, क्या कुछ कहा उसने? तो कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। तो कहा आखिर वजह क्या? तो मैंने बतलाई कि हमारे पहले शौहर थे जिनके हालात ऐसे ही थे, लेकिन आज ये हालात हैं कि वो किसको लेकर के भीख मांग रहे हैं। तो मेरे दूसरे शौहर ने कहा कि मैं बताऊं कि उन्होंने किसको पैर लात मारा था? वो मैं ही था। वो मैं ही था। मतलब क्या? जिस फ़कीर को उन्होंने लात मारा था वो फ़कीर आज उनको फ़कीरी की हालत में खुराक दे रहा है। यानी वो उन्होंने लात मारा था मुझे, लेकिन मैं उसके बदले में लात मारने के बजाय उनको खाना दे रहा हूँ। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये ज़माने की गर्दिशें हैं जो हम लोगों के दरमियान उलट फेर करते रहते हैं। ये अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ़ है। इसमें किसी का अमल दखल कुछ भी नहीं है कि भाई हमने अपने बलबूते पर अपने दिनों को अच्छा बना लिया और अच्छा बना, ऐसा नहीं। अल्लाह के आप कितने होशियार और काबिल हैं। अल्लाह ना चाहे तो आप किसको लेके भीख मांगने पर मजबूर होंगे, और अल्लाह चाहे आप कुछ भी नहीं, कितने भी बड़े जाहिल हैं, लेकिन अल्लाह चाहे तो आपको इतनी दौलत दे सकता है कि लोग दूसरे की आंखें खुली रह जाती हैं। वला नौ, नक्षत्र की कोई हैसियत, कोई हकीकत नहीं हुआ करती। सितारों की गर्दिश से इंसान के अमाल, इंसान की ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं आता। ये लोगों के गलत नज़रियात और अकायद हैं जो आज हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी पाए जाते हैं। वला कौल, आखिरी बात, वला कौल, कौल के माने होते हैं भूत परीत। भूत परीत की कोई हकीकत नहीं समझे। उसको मैं मिसाल देता हूँ। आप अभी सब बैठे हुए हैं, लाइट अचानक चली जाए, रात के अंधेरे में खूब अंधेरा छा जाए, यहाँ ये पर्दे रंगीन के बजाय काले पर्दे हों, तो आप यही सोचेंगे कोई इंसान था जो खड़ा नज़र आ रहा था, किसी का साया नज़र आ रहा था। नहीं समझे। आपकी वालिदा ने बुर्का लटका रखी है, घर में लाइट चली गई तो आप सोचेंगे कोई आदमी खड़ा है। आपने बेल्ट लटका रखी है, लाइट चली गई अंधेरे में, आप अपने बेल्ट को क्या समझेंगे? कोई सांप है जो दीवार पर चढ़ रहा था। ये इंसान के तसव्वुरात हैं जो इंसान के दिमाग में बैठ जाते, और फिर उसी को वो क्या सोचता, हमारे घर में आसेब है, हमारे घर में भूत परीत है जो रात में आकर के हमको डराता है। अब उसके नतीजे में आप किसी भी मुल्ला के पास पहुंचेंगे तो जाहिर बात है उसकी फ़ीस बहुत होती। डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 होती है, लेकिन मुल्ला की फ़ीस 5000 होती है। क्यों? इसलिए कि वो आपके अकीदे पर पहले हम परख चुका है, आपका अकीदा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए आप आए हुए हैं भूत परीत। अगर आपके अकीदे में पुख्तगी होती तो आप ये कहते कि भूत परीत कोई माना नहीं रखता। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमको इलाज बता दिया अपने घरों की हिफाजत का। क्या इलाज बताया? ला तजलू बुयूतकुम मकाबिरा इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा। अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। गौर कीजिए, घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, जुमले पर गौर कीजिए। आज हम कब्रिस्तान में कुरान भी पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सब पढ़ लेते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। यानी जिस तरह कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जा सकता, जिस तरह नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ऐसे अपने घरों को न बनाओ। अपने घर में कुरान पढ़ो, अपने घर में नमाजें पढ़ो। क्यों? फ़इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा। शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। आप सूरह बकरा फजर की नमाज की बात पढ़ते रहें, न भूत आएगा, न परीत आएगी, न सेब आएगा, न किसी मुल्ला के सामने जा करके आपको हाथ फैलानी पड़ेगी। याद रखिएगा, ये अकीदे की खराबी है। वला कौल, 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 6 बातें वाज़े कर दी थी, और आज मुसलमानों के दिमाग में इन 6 बातों की झलक किसी न किसी नाहिए से आपको मिलेगी।
اور یہ یاد رکھیے جہاں کہیں یہ جھلک آئے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اور نگاہ عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے آپ کے عقیدے میں اتنی پختگی آ جانی چاہیے کہ غالب کو کہنا پڑے ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم۔ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ تو آج کی اس بیٹھک میں ہماری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں اپنے عقیدے پر نظر کرنے، اپنے عقیدے کو مضبوط و مستحکم بنانے کا حکم دیا ہے، اور ان عقیدے میں فالٹ لانے کے لیے، عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے جو راستے تھے، شریعت نے ان سارے راستوں پر بندش لگا دی ہے، باندھ لگا دیا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان عقائد و نظریات کی روشنی میں اپنے عقیدے کو پرکھیں، جانچیں اور غور کریں کہ کہیں ہمارے اندر یہ خرابی تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو پہلی فرصت میں ہمیں ان تمام عقائد و نظریات سے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، اور ایک اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے ایک اللہ ہی کو مالک قادر مطلق، حاکم وقت، حاکم مطلق تصور کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر نظر کرنے اور اپنے عقیدے کو کتاب سنت کی روشنی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ماحول اور سماج کے چکر میں پڑھ کر ہمارے عقیدے میں جو خرابی آ گئی ہے، ہمیں ان خرابیوں کو دور کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیان کے بعد سوالات و جوابات کا وقفہ ہوتا ہے، اسی لیے جو حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر کے بھیجیں۔ انشاءاللہ میں جو بھی جانتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہمارے سامنے چند سوالات آئے ہیں۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ پہلا سوال ہے، اگر ہم رکوع میں امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے اصل مدرک رکوع مدرک رکعت ہے کہ نہیں۔ مدرک رکوع یعنی رکوع میں امام کے ساتھ ملنے سے وہ رکعت شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر ہم احادیث کے الفاظ پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہے۔ رکوع میں امام کے ساتھ ملنے والے کی وہ رکعت پوری نہیں ہوتی۔ وجہ قیام فرض ہے، آپ کو امام کے ساتھ قیام نہیں ملی۔ سورہ فاتحہ فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ظاہری اسباب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بخاری کی پیش کی جاتی ہے حضرت ابو بکرہ کی، حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، میں مسجد میں داخل ہوا تو آپ رکوع میں جا چکے تھے، میں وہیں سب سے پیچھے ہی رکوع میں گیا اور وہیں سے چل کر کے آ کر کے رکوع میں ملا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے آپ کو بتلایا کہ میں تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تمہارے حرص کو اور بڑھائے لیکن ایسا نہ کرنا۔ یہاں تین لفظ ہے، ایک ہی لفظ کے تین، عربی عبارت میں زبر زیر سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، اور جس طریقے سے زبر زیر سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے ایسے ہی صلہ کے بدلنے سے بھی معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ معنی کے فرق کی وجاہت آپ کو بتلاؤں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں علماء پر حمزہ پر پیش ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہی ہوتے ہیں، یعنی جس کو علم ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، وہی ڈرتا۔ اگر ہم
اللہ کے زبر کو انما یخشی اللہ ہے اس کو پیش بتانا ہے، انما یخشی اللہ، اور علماء میں جو پیش ہے اس کو زبر بنا دیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے عالموں سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کو کسی سے ڈر نہیں محسوس ہوتی، کس سے ڈرتا؟ اللہ سے۔ معنی میں کتنا تبدیلی آ گئی۔ اسی لیے بخاری کے اس الفاظ پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 احتمال بیان کیا، ولا تعید، ولا تعود، ولا تعدو، کا 3 مطلب ہو جاتا ہے۔ ولا تعید، ایسا نہ کرنا، ولا تعدو، اس کو شمار نہ کرنا، ولا تعید، اس کو دہرانا نہیں، تینوں احتمال ہے۔ اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ جس الفاظ پر کثرت احتمال ہو ان الفاظ کو کثرت احتمال سے بچنے کے لیے ایسے طریقے استعمال کیے جائیں جس میں احتمال نہ ہو، اور احتمال نہ ہونے کی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ اب عبداللہ بن باز نے فتویٰ دیا ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہو جاتا، لیکن آپ یہی ذہن میں بٹھائیے کہ ایک تو قیام فرض ہے، آپ نے قیام نہیں کیا، ایک سورہ فاتحہ فرض ہے، آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، 2 رکن ہیں، یاد رکھیے، اور 2 رکن کے نہ ہوتے ہوئے آپ رکعت شمار کر لیں تو یہ شک ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز اپناؤ جس میں شک نہ ہو۔ اس لیے مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہے، یہ ہماری تحقیق، اور تحقیق کی بنیاد یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ پر 3 احتمالات ہیں، اور کثرت احتمال کی بنیاد پر مدرک رکوع کو مدرک رکعت تصور نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، پتھر کی انگوٹھی پہننا، انگوٹھی چاندی کی ہے کہ سونے کی، یہ یاد رکھیے۔ نگینہ الگ شکل ہے، نگینے جس انگوٹھی میں ڈالا جاتا ہے اس انگوٹھی کو آپ ذہن میں بٹھائیے، سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا کا استعمال حرام ہے، اگر دنیا میں پہن لیتا ہے تو یہ سمجھ جانا آخرت میں نہیں ملے گا۔ اور جنتی جنت میں کیا پہنیں گے؟ سونا اور چاندی ہی پہنیں گے، جنت میں نہیں ملے گا، اس کا آخرت میں نہیں ملے گا، اس کا اشارہ یہی رہا کہ آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے سسرالیوں کے دینے پر بھی آپ سونے کی انگوٹھی استعمال نہ کریں، بلکہ صاف واضح کر دیں بھائی اگر ہم کو ہمارے لیے جائز ہوتا تو ہم اپنے کمائی سے بھی بنا سکتے تھے۔ رہا پتھروں کا، تو پتھروں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ بھئی یہ پتھر لگا دیں گے تو آنے والی مصیبت ہٹ جائے گی یا پتھر پھٹ جائے گا، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یاد رکھیے گا۔ عقیدتاً کسی پتھر کو استعمال کرنا غلط، آپ دیکھتے ہوں گے بہت جگہ پتھر، یہ پتھر عقیق کا ہے، یہ زمرد کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس پتھر میں یہ خوبی ہے کہ اگر یہ پتھر انگوٹھی میں رہے گی تو آنے والی مصیبت پر یہ پتھر چٹک جائے گا، ہیں تو چٹک جائے گا، تو آپ ہر وقت انگوٹھی دیکھتے رہیں گے تبھی تو آپ سمجھیں گے پتھر چٹک گیا، اس کا مطلب کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ رہا کہ آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو انگوٹھی دیکھتے رہیے، ہاں، اور انگوٹھی دیکھتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اس لیے پتھر کوئی بھی ہو، عقیق ہو، زمرد ہو، بڑے سے بڑا قیمتی پتھر کیوں نہ ہو، استعمال کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ عقیدت کی بنیاد پر نہیں، نظریے کی بنیاد پر نہیں، زینت کے طور پر، خوبصورتی کے طور پر قیمتی سے قیمتی پتھر، مونگا اور مرجان بڑا قیمتی پتھر مانا گیا ہے، لیکن سونا حرام ہے، اسلام نے سونے کو حرام قرار دیا، اس لیے آپ قیمتی سے قیمتی پتھر نگینے کے طور پر، نگ کے طور پر لگا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کے عقیدے پر فالٹ نہ آئے۔ تو ابھی تیسرا سوال ہے، بتاتے ہیں کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بیماری نازل ہوتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ کو یہاں ہندوستان کی سرزمین پر سفر کے تعلق سے بتلاتے ہیں کہ سال میں ایک رات 100 بیماری اترتی ہے، جو ہے 50 بیماریاں صرف سفر کے مہینے میں ہوتی، یہ تو بالکل غلط۔ ہاں، رہا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ سال میں ایک بیماری اترتی ہے، ایک رات میں کوئی بیماری اترتی ہے ایک رات میں، اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے برتنوں کو ڈھانکے رکھو، اپنے دروازے کو بند رکھو، پانی کے برتن کو بھی ڈھانک دو کھانے پینے کی، اس لیے کہ وہ رات میں اترتی ہے۔ اب جس برتن کو کھلا پاتی وہاں گھس جاتی،
और वो इस्तेमाल कर लेने के बाद वो बीमारी उसको लग जाती है। ये सही हदीस है। इस बुनियाद पर एक रात उतरती है। अब यहाँ 100 गिनती, 50 गिनती, 10 गिनती की नहीं, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एक रात में एक बीमारी उतरती है, गोया एक ही बीमारी हुई। अब वो बीमारी उतरती है, आपके घर के सारे ढक्कन बंद है, दरवाज़ा भी बंद है, पानी का ढक्कन भी, रंजन भी बंद है, आपके खाने के भगोने भी बंद हैं, तो ज़ाहिर बात है आपके घर से निकल के तलाशेगी वो। उसको आप ऐसे समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी को काफिर कहता है तो काफिर की आवाज़ निकलती है, ऊपर जाती है, आसमान के दरवाजे पूरे बंद पाती है, तो फिर वह नीचे आती है, नीचे भी देखती है कि ज़मीन में कहीं रास्ता मिल जाए तो जाने की कोशिश करती है, रास्ता नहीं मिलता, तो फिर वो पलटती है उन दोनों की तरफ जिसने कहा है और जिसके लिए कहा गया है। अगर जिसके लिए कहा गया है हकीकत में वो काफिर है तो उसकी तरफ पलट जाती है, और अगर नहीं तो फिर जिसने कहा है वो उसकी तरफ पलट आती है। गोया वो चक्कर लगाती रहती है। यही कैफियत इस बीमारी की है कि वह साल में एक रात में बीमारी उतरती है। वो कब उतरती है वो अल्लाह को मालूम, कौन सी रात होती है अल्लाह को मालूम। इसलिए हमें क्या हुक्म दिया गया कि हम अपने बर्तनों को ढाके रखें, जब दरवाज़ा बंद करें तो बिस्मिल्लाह करके बंद करें, इसलिए कि बंद दरवाजे को शैतान खोलता नहीं है। और हम जब सोएं तो अपने चिरागों को बुझा लिया करें। अल्लाह के नबी ने चिरागों को सोने से पहले बुझाने का भी हुक्म दिया है। ये सारी कैफियत हैं जिसके नतीजे में आज हम बदएहतियाती का शिकार हो जाते हैं और वही हमारे लिए तबाही का जरिया बन जाती है। तो ये हदीस सही है, ये बात सही है कि साल में एक बीमारी उतरती है और वो कहीं ना कहीं घुसती है, और उसकी घुसने के बाद वो बीमारी उस घर में, पूरे दुनिया में नहीं फैलती, ये भी याद रखिएगा। जहाँ वो अपना असर दिखाती है, जहाँ घुस जाएगी वहीं तक वो बीमारी महदूद रहेगी, सारे के सारे लोग उस बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। नंबर 5, आजकल हमारे मुस्लिम माशरे में लोगों के नाम ना हूँ, जैसे बच्चों की नौकरी की परेशानी की, लोगों के काम ना हूँ, जैसे बच्चों की नौकरी की परेशानी, रिज़्क़ की कमी, तो लोग आलिमों के पास जाते हैं कि कोई कुरानी आयत या कोई दुआ पढ़ने दें जिससे परेशानी दूर हो जाए। ये किस हद तक सही है या यह अक़ीदे की कमी है। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को बराबर नहीं रखा। अल्लाह तबारक व तआला किसी को खुशहाली देता है, किसी को बदहाली देता है। कमी बेशी, रोज़ी में कमी बेशी भी उसकी तरफ से इम्तिहान है, एक बात। दूसरी बात ये कि कभी कभी आदमी की अच्छी हालत बुरी हालत में बदल जाती है। तो क्यों बदलती है? कुरान ने इसको वादे किया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हें जो भी तकलीफ़ें, जो भी मुसीबतें पहुँचती हैं, ये तुम्हारी बदआमाली का नतीजा, तुम्हारे हाथ की कमाई का नतीजा। इसलिए कभी भी कोई ऐसी बात हो जाए, भूखमरी आ जाए, परेशानी आ जाए, तो आदमी को अपने आमाल पर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि हमसे कहीं फॉल्ट हुई है, कहीं गलती हुई है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मन सर्रहू अन युबसत लहू रिज़्क़ुहू व यंशु फी असरिही फलियसिल रहीमहू। सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया जिसको ये बात अच्छी लगे कि उसकी रोज़ी में कुशादगी हो और उसकी उम्र में ज़्यादती हो तो सिला रहमी करे, रिश्ते नातों को जोड़े, रिश्ते नातों को जोड़े। गौर कीजिएगा, माल रोज़ी में कुशादगी, उम्र में ज़्यादती, इन दो चीज़ों के लिए अल्लाह के नबी ने क्या उसूल बतला दिया? रिश्ते नातों को जोड़ना। ये इशारा है कि आज हमारे अंदर जो माशरती एतबार से परेशानियां हैं, अगर हम बारीकी पर गौर करें तो रिश्ते नाते को तोड़ने का नतीजा। वो कैसे? आज हमारा नौजवान जब तक शादी नहीं होती दिन में 100 बार अम्मी 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 करता, और जिस दिन मुल्लानी आ जाती उस दिन से अम्मी भूल जाता। और कभी कभी ये भूल इस हद तक हो जाती कि ससुराल पहुंच जाता, माँ को भुला देता। नहीं समझे? याद रखिएगा, सबसे पहला हक रिश्तेदारों में आपका कौन है? ददिहाल। अब्बा ना होते तो अम्मी आती, बोली ददिहाल, ये पहला हक है। पहले हक के बाद दूसरे नंबर पर आपका ननिहाल।
ननिहाल, ननिहाल समझते, अब इतने तो है नहीं आप लोग। उसके बाद है ससुराल। ससुराल बहुत देर का हुआ। पहला हक ददिहाल का, दूसरा हक ससुराल ननिहाल का, तीसरा हक ससुराल का। हमने क्या किया है, ददिहाल भी गया भाड़ में और ननिहाल भी गया भाड़ में। हमने फौकियत किसको दे दी, ससुराल में। परेशान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। कल मैं हमारे स्कूल में जुमा के दिन मुझे बच्चों को वाक़यात सुनानी पड़ती हैं, तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बच्चों को बतलाई। इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उक़ूक़ल उम्महात, अल्लाह ने तुम पर माओं की नाफरमानी को हराम किया है। माँ की नाफरमानी हराम। माँ की नाफरमानी का नतीजा अल्लाह ताला दुनिया में भी तबाही का सबब बना देता है। आइए आपको बतलाता चलूँ दोनों वाक़े। हज़रत जुरैज, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में एक वाक़या नकल किया। हज़रत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह, ये बनी इसराइल के बड़े आबिद, बहुत नेक। इनकी वालिदा थी, वालिद नहीं थे। तो माँ को जब भी बेटे से बात करनी होती, वो बाहर उन्होंने बस्ती से बाहर एक कुटिया बना रखी थी, उसी में रात दिन इबादत करते थे। माँ आती, माँ बेटे दोनों मिलते, बातचीत होती, माँ चली जाती, अपनी इबादत में लग जाते। एक दिन माँ आई तो नमाज पढ़ रहे थे। दस्तक दी, बेटे जुरैज। परेशान हो गए, नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या करूँ, अम्मी को जवाब दूँ कि ना दूँ। फिर ख्याल आया कि अल्लाह का हक बड़ा है, जवाब नहीं दिया, माँ चली गई। दूसरे दिन फिर आई, इत्तफाक से उस दिन भी नमाज पढ़ रहे थे। तीसरे दिन फिर आई, उस दिन भी नमाज पढ़ रहे थे। 3 दिन जवाब नहीं दिया। माँ के दिल में क्या आया, इसको अपनी इबादत पर बड़ा गुरूर हो गया, तभी ये जवाब नहीं दे रहा है। तो अल्लाह से बद्दुआ कर दी। क्या कहा, ऐ अल्लाह, जब तक ये किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले तब तक इसकी मौत ना आए। इसीलिए याद रखिए, माँ की दुआ के लिए कोई वक्त नहीं है। माँ की दुआ की कबूलियत के लिए कोई वक्त नहीं, कोई घड़ी नहीं। माँ की बद्दुआ की कबूलियत के लिए भी कोई घड़ी नहीं। माँ ने बद्दुआ की, लग गई। गांव में एक बदकार औरत थी, शैतान उसको वरकलाया, आई इनके पास, कौन, फला है, भाग जा। वो वहाँ से भागी, जा कर के बकरी चराने वाले चरवाहे से मिली, हमल हुआ। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो उस औरत ने कह दिया, जुरैज का बच्चा। लोग परेशान, अरे इतना बड़ा पारसा आदमी और ये बच्चा। भागे हुए आए, उनको उनकी कुटिया से निकाला, मारना पीटना शुरू कर दिया और कुटिया को बर्बाद कर दिया। कुटिया समझ रहे हैं, जिसमें झोपड़ी। जुरैज ने कहा, आखिर बात क्या है भाई? कहा, बात ये दीनदारी, ये बच्चा तुम्हारा। समझ गए माँ की दुआ का असर। फौरन कहा, बच्चे को लेकर आओ। 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज के बाद बच्चे से पूछने लगे, बेटे बता तेरा बाप कौन है? 2 दिन के बच्चे ने मुंह खोल कर जवाब दिया कि मेरा बाप फलां चरवाहा है। लोगों ने जब देखा कि 2 दिन का बच्चा बात कर रहा है, फौरन सन्नाटे में आ गए, माफ़ी मांगने लगे। कहा, नहीं है कोई बात नहीं है, ये हमारी माँ की बद्दुआ का असर है। आज हम जो परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, खाने में तंगी, परेशानी, ये माँ की बद्दुआ का असर है। हमारी नई नस्ल इस पर ज़्यादा ध्यान दे। ससुरालियों को फौकियत नहीं देना, याद रखना। ससुराली हैं, वो भी माँ बाप हैं आपके, लेकिन उनका जो मुकाम है 3रे नंबर पर है। पहले आपकी कमाई के हकदार कौन? आपके माँ बाप। दूसरे नंबर पर अगर आपकी दौलत, आपके अंदर इतनी अल्लाह ने सकत दी है, ज़कात निकलता है, तो पहले अपने ननिहाल को देखिए, मामू को, ममेरे भाइयों को, फुफेरे भाइयों को, खलेरे भाइयों को। बाद में साले और सालियों की नंबर आता है, याद रखिएगा। आज हम जो परेशान हैं ना, उसकी वजह यही रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आए, हम जहाँ कहीं जाएं हमारी नौकरी लग जाए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। याद रखिएगा, जन्नत माँ के कदमों के नीचे नहीं है। इसलिए नई नस्ल को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज हम परेशान हैं, उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने रिश्ते नातों को तोड़ दिया है, और जो रिश्ते नातों को तोड़ देता है दुनिया में भी परेशान, और आखिरत में उसका क्या हाल होगा, वो बात की बात। दूसरी हदीस मुस्नद अहमद की, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक रवायत नकल की है अपनी किताब मुस्नद अहमद में। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। सहाबी का दर्जा कितना ऊंचा, लेकिन जब उनकी मौत का वक्त आया तो ज़ुबान बंद हो गई। जैसे आजकल हमारे मुसलमानों की मौत होती है हॉस्पिटल में, सांस चलती रहती है, कब मौत हो गई पता नहीं।
हैं। डॉक्टर भी बहुत सियाना होता है, देख लेता है कि ये घर पार्टी वाली है तो सांस के ज़रिए चलाता रहता है, 2-3 दिन की और फीस वसूल कर लेता है ना, याद रखिएगा। तो मुंह बंद, और याद रखिए मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलमा, जिसकी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह होगी वो जन्नती होगा। उनकी बीवी कोशिश करने लगी कलमा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन मुंह बंद था। भागी हुई आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी आपके सहाबी हैं अलक़मा, आखिरी वक्त है, ज़ुबान बंद है। अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल और दीगर सहाबी को भेजा, जाओ वहाँ कलमा पढ़ो, शायद तुम्हारी आवाज़ सुन के आए। तो देखा पढ़े। अल्लाह के नबी को इत्तला दी गई तो आपने पूछा इनकी माँ है? तो लोगों ने कहा हाँ, कहा माँ को बुलाओ। माँ आई लाठी टेकती हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो है अलक़मा की माँ, अपने बेटे को माफ़ कर दो। माँ ने कहा मैं अपने बेटे को माफ़ नहीं करती, मैं अपने बेटे को माफ़ नहीं करती। अल्लाह के नबी ने कहा अलक़मा की माँ माफ़ कर दो, तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा होगा। कहा नहीं माफ़ कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, जाओ लकड़ी का गट्ठर इकट्ठा करो, लकड़ियाँ इकट्ठा करो, जब आग लगा दो और जब आग जलने लगे तो अलक़मा को डाल देना। माँ बोली मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने आग में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अलक़मा को माफ़ नहीं करोगी तो अलक़मा इससे ज़्यादा तेज़ आग में जलेगा। कहा अल्लाह के रसूल गवाह रहिए मैं माफ़ करती हूँ। इधर माँ ने माफ़ किया, उधर अलक़मा की ज़ुबान खुली, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया और रूह परवाज़ कर गई। तो आज हम जो परेशान हैं, रोज़ी की कमी में मुल्लाओं के पास जाने से कुछ नहीं होता है। माँ की खिदमत करने लग जाइए। मैं दावा करता हूँ अगर मुल्लाओं को दिया है तो पछताएंगे। माँ की खिदमत करने लग जाइए। ससुराल जाके बस गए हैं, ससुराल को लात मारिए, घर आके आबाद हो जाइए। इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी में कुशादगी, आपके दौलत में कुशादगी, आपकी नौकरी ना लग रही होगी तो लग जाएगी, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये मेरा दावा है, आप इसको करके देख लीजिए। इंशाअल्लाह किसी मुल्ला मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मन सर्रहु युबसता रिज़्क़हु वयुनसा फ़ी असरिही फ़लियसिल रहिमहु। रिश्ते नातों को जोड़ने के नतीजे में रोज़ी में कुशादगी होती है, उम्र में बढ़ोतरी होती है। बाप ये कह सकते हैं उम्र ज़्यादा कैसे हो जाएगी? उम्र में बढ़ोतरी का मतलब ये होता है कि आदमी को लगता है हम कितने साल के हो गए। उम्र उतनी ही रहती, लेकिन खुशी और मसरत, आराम और सुकून की ज़िंदगी जब मिलती है तो आदमी अपने आप को सोचता है हम कितने सालों से आराम से रह रहे हैं। ये है उसका मफ़हूम। ये नहीं है कि आप 70 साल के हैं, माँ की खिदमत करते रहेंगे तो 90 साल के हो जाएंगे। उम्र तो इतनी ही है जितनी लिखी जा चुकी है माँ के पेट में। लेकिन यहाँ खुशहाली और बदहाली की तरफ इशारा है। उसके बाद है छठा सवाल, क्या जो लोग नाम की वजह से उनका किरदार, क्या जो लोग नाम की वजह से उनका किरदार कैसा होगा? वो पहला सवाल तो नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा, कुछ लोग सितारों के नाम देख कर रखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया वाला 9 सितारों का इन ज़िंदगी के हालात पर कोई असर नहीं रखता। ये अकीदतन खराबी है कि सितारों की गर्दिश से नामों पर फ़र्क पड़ता है। आयन है तो फला सितारा फला जगह रहेगा तो आयन का असर, ते है तो ये असर, काफ है तो ये असर, है ना, हैं। तो ये सारी कैफियतें जो हैं ये अर्राफ और नजूमियों की हैं, और अगर आप ये अकीदा रखते हैं तो आपकी सारी इबादतें बेकार। इसलिए सितारों वगैरह के नहीं, आपको अम्बिया के नाम, सहाबा के नाम, इतने नाम हैं जो माना के एतबार से अच्छे हों, उनको रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि नाम का असर, यहाँ असर से मुराद माने का असर, उसको नाम बच्चों के ऊपर पड़ता। अच्छा नाम होगा आगे चल करके वो अच्छा होगा इंशाअल्लाह। और नामों की ख़राबी के नतीजे में बच्चों के अखलाक व किरदार पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। उसके बाद कसर की नमाज के अलावा आपने ज़ोहर असर की नमाज एक साथ पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। जमा बैन सलातैन मुकीम भी कर सकता है। सफ़र में तो कसर है ही। असर और फजर जो है, ज़ोहर और असर एक साथ, और मगरिब और ईशा एक साथ। कसर 2 तरह है, एक जो है मवक्खर, एक मुवज्जल। मतलब जल्दी करके भी कसर पढ़ सकते हैं और आखिर करके भी। ज़ोहर के वक्त में असर मिला के पढ़ना ये तकदीम है,
और असर के वक्त में ज़ोहर पढ़ना ये ताख़ीर है। तो सफ़र में कसर जमा बैन सलातैन अल्लाह के नबी ने करने का हुक्म दिया है और किया भी है। हज़र में भी, हज़र मुराद यहाँ जैसे आप बैठे हुए हैं, हज़र में भी जमा बैन सलातैन किया जा सकता है हालात के एतबार से। बारिश बहुत हो रही है, हर वक्त मस्जिद दूर है, तो आप जो है एक वक्त में पहुँच करके ज़ोहर असर पढ़ लें। कर्फ्यू लग गया है, बाहर निकलना मुश्किल है, तो आप जाहिर बात है जमा बैन, हालात ऐसे हों तो हज़र में भी जमा बैन सलातैन किया जा सकता है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस बुखारी में जमा बैन सलातैन फिल हज़र, हज़र में भी अल्लाह के नबी ने दो नमाज़ों को एक साथ करके पढ़ी है, पढ़ी जा सकती है। इन्होंने सवाल किया है व्हाट इज ताउन, ताउन क्या है? एक बीमारी होती है, आदमी को उल्टियाँ और पाखाने दोनों लग जाते हैं। क़य दस्त जब शुरू हो जाता है तो ये बीमारी होती है, और ये ताउन की बीमारी जब फैलती है तो पूरी की पूरी बस्ती को साफ कर जाती है, एक दो नहीं। एक अगर ताउन की बीमारी, जिसको हमारे यहाँ कालारा बोलते हैं, हिंदी में उसको कालारा बोलते हैं, ये कालारा की बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है। और ताउन की बीमारी में अगर मुसलमान की मौत हो जाती है तो ये उसके लिए शहादत का दर्जा रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताउन एक अज़ाब था जो बनी इसराइल पर उतरा था। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। इस आयत की तफ़सीर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रवायत पेश की जाती है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हमने उन पर आसमान से एक अज़ाब नाजिल कर दिया। यही ताउन की बीमारी थी। तो ताउन एक अज़ाब था बनी इसराइल के ऊपर, और अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए रहमत बना दिया है। अगर ताउन की बीमारी में कोई मरता है तो उसको शहादत का दर्जा मिलता है। ये ताउन की बीमारी बड़ी महलिक बीमारी होती है, और ये चूहों से फैलती है। चूहे, जंगली चूहों से ये बीमारी आमतौर पर फैलती हैं। इसलिए जो है अतिब्बा ने इस पर ध्यान दिया है कि जंगल से आने वाले चूहों को शहरों में दाखिल न होने दिया जाए, तो ताउन की बीमारी से महफूज रखा जा सकता है। The concept of ghost is wrong in Islam. नहीं समझ पाए, इसको उर्दू में बदल दो। उसके बाद है सवाल अव्वाबीन का सही वक्त क्या है? अव्वाबीन का सही वक्त ये जो इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, ये उसी का वक्त है। 8 बजे से लेकर के जवाल से पहले पहले कभी भी आप अव्वाबीन की नमाज पढ़ सकते हैं। सही वक्त 8 बजे, यानी सूरज की गर्मी में इतनी तेज़ी आ जाए कि आप धूप बर्दाश्त ना कर सकें, वो वक्त अव्वाबीन का वक्त है। मगरिब के बाद का जो आज मुसलमानों के दिमाग में बैठा दिया गया है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। वज़ू करते वक्त ताज़ा 3 मरतबा धोना चाहिए, लेकिन अगर 3 मरतबा धोने के बाद भी कोई सूखा रह जाए तो क्या फिर दोबारा वज़ू करनी चाहिए? पहली बात यह है कि वज़ू करते वक्त अल्लाह के नबी ने कहा फ़अहसना वज़ूअहू, अपने वज़ू को अच्छा किया। मतलब क्या है? एक बार वज़ू आ जाए, वज़ू का धोना फ़र्ज़, 2 बार धोना सुन्नत, 3 बार मुस्तहब, चौथी बार इस्तिराफ, आप गुनहगार होंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी आज़ा को धोया है। अब जाहिर बात है, एक बार आज़ा को धोने का मतलब ये है बदन को अच्छी तरह मल कर करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, नल पूरी टोटी खोल देते, हाथ डाले, 3 मरतबा हो गया। तो जब आप हाथ ही नहीं फेरेंगे तो जाहिर बात है कोहनी सूखी रहेगी। नहीं समझे? टोटी खोलना ही नहीं, पहले मेरी बात, जब आपको पानी लेना हो तभी टोटी खोलना, इसलिए कि पानी का भी हिसाब होगा, पानी का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। सहाबा ने मरतबा सवाल किया, हम नदी के किनारे नदी में वजू कर रहे हो तो भी? आपने फरमाया हाँ तो भी। क्या मतलब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा किलो पानी से, आधा लीटर पानी से वजू करते थे, और हम मस्जिदों में जाते तो लगता है वो जो है मुफ्त का माल है, टोटी पूरी खोलते हाथ मारते रहते। हाँ, तो याद रखिए हाथ को पानी लेना मल के धोने का,
तो आप 3 बार जब वजू धोएंगे तो सूखा रहने का सवाल ही नहीं है। ये सूखा क्यों रहता है? जल्दबाजी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरतबा सहाबे कराम ने जल्दी जल्दी वजू की तो एड़ियों का पिछला हिस्सा सूखा रह गया। ये रग होता ना पिछला, ये पीछे सूखा रह गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया वैलुल लिल आक़ाब, एड़ियों के लिए वैल है। सहाबे कराम ने देखना शुरू किया तो क्या देखा? सूखा। गए फिर से वजू करना। तो यहाँ मतलब इनका कहने का एक बार तो आप 3 बार आधा धोने के बाद भी आपका आधा सही नहीं रहा, दोबारा भी जाएंगे तो आप फिर नल खोल करके ये चीज़ चालू करेंगे तो क्या होगा? इसलिए 1 बार धोना फ़र्ज है, 2 बार सुन्नत है, 3 बार मुस्तहब। इससे ज़्यादा आप गुनहगार होंगे। इसलिए वजू करते वक्त टोंटी खोलिए, एक हाथ में पानी लीजिए, उल्टे हाथ से बंद कीजिए, फिर अच्छी तरह धोइए। फिर टोंटी खोलिए, पानी लीजिए, आधे से वजू कुल्ली कीजिए, आधे को नाक में डालिए। अफजल है, याद रखिए, आधे चुल्लू से कुल्ली करना और आधे से नाक में डालना ये अफजल है। अलग अलग भी आप कर सकते हैं। समझ में आई? तो गोया पानी की किफ़ायत करने का क्या है? टोंटी को बार बार आपको खोलना पड़ेगा। और जब आप बार बार खोल करके करेंगे आजा को तो जाहिर बात है हाथ जब आपके आजा पर फिरेगा तो आपके आजा सूखे नहीं रहेंगे। वो आप मैंने भी अंदाज लगा, नल खोल दिए, हाथ 3 बार फेरते रहे, गिनती गिन ली आपने, 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद मसा किया, देखा तो पीछे कोनी सूखी है। हाँ, तो नल खुला हुआ, 3 बार पैर को हिला दिया, एड़ी सूखी है। तो याद रखिए वजू नहीं होता, और वजू नहीं होता तो नमाज नहीं होती। इसलिए आपको दोबारा वजू करनी पड़ेगी। लेकिन दोबारा वजू करने पर आप गुनहगार होंगे, इसलिए कि आप पहली बार इतना पानी ज़ाय कर चुके हैं, उसका हिसाब कौन देगा? मुसलमानों को यही दिमाग में बिठाना है। हुकूमत तो बेचारी नगर पालिका कहती है पानी किफ़ायत से खर्च करो, लेकिन मुसलमानों को समझ में नहीं आती। इसलिए कि आखिरत का तसव्वुर उनके दिमाग में बिठाना है। तो पानी आदाए वजू का 1 बाल के बराबर भी सूखा रहा तो आपका वजू नहीं होगा, और वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। इसलिए अगर आप फौरी तौर पर गीले हाथ को फेर लेते हैं तो वजू बाकी रहेगा, लेकिन सूख जाने के बाद भी अगर वो सूखा हुआ तो आपको दोबारा वजू करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर लिखा या चौथी मरतबा भी धोना चाहिए। चौथी मरतबा धोना गुनहगार होगी, इसलिए कि 3 बार से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। यह हमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अंग्रेज़ी का तर्जुमा हुआ? अल्लाह थोड़ा मैं इशारा कर लूँ। पेपर दे दे। पूछे कि जैसे कि इस्लाम में भूत प्रेत नहीं मानते तो नहीं सुनता हूँ ना यार। काले जादू की हकीकत बताइए। बोले जैसे भूत प्रेत का इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है, तो वैसे काला जादू क्या है, फिर उसके बारे में बताइए। अच्छा, हमारे भाई ने सवाल किया है जब इस्लाम में भूत प्रेत नहीं है तो ये काला जादू क्या होता है? याद रखिए, ये जादू एक ही है, ना उसमें सफ़ेद जादू होता है ना काला जादू होता है। ये सिर्फ मुल्लाओं ने अपने अपने नाम रखे हैं। समझ में आई? जादू जादू है, और जादू में काला और सफ़ेद नहीं होता। आमतौर पर आप देखे होंगे बहुत से, मैं मुसलमानों के घरों में नए घर बनाते तो वहाँ भी देखा हूँ मैं, मिर्ची और लेमू और काला काला एक कपड़े का सिला हुआ लगाते। तो ये काला जादू और सफ़ेद जादू ये सब बकवास की बात है। जादू जादू है, जादू की हकीकत है। जादू बहुत असर करती है, लेकिन किन पर असर करती है भी आपको बतला दूं। जादू सिर्फ बेनमाजियों को असर करती है। याद रखिएगा, अगर आप पक्के नमाजी हैं, आपका ईमान और यकीन अल्लाह की ज़ात पर है, तो जादू आपको असर नहीं करेगा। फिर आप सवाल कर सकते हैं अल्लाह के नबी पर जादू का असर कैसे हुआ? कर सकते हैं ना? तो याद रखिए, असर की नौइयत अल्लाह के नबी पर क्या थी? वही के मामले में जादू का असर नहीं हुआ था। आपके जिस्मानी एतबार से, ख्यालात और तसव्वुरात के एतबार से जादू का असर हुआ था। हज़रत आयशा कहती हैं कि आपके ऊपर जादू का असर ये था कि आप कोई काम करते, आपके ख्याल में आता कि मैंने किया, हालांकि नहीं किए रहते, और आप नहीं करते और वो काम कर चुके होते। यही बस, इतना ही जादू का असर था। बाकी तो जादू में होता क्या है कि आदमी की कैफियत में तब्दीली कर दी जाती है। अगर आप दारुस्सलाम रियाद से किताब निकली है जादू की हकीकत और उसका इलाज, तो आप देखेंगे कि उसमें जादूगर क्या करता है। पहले बात तो ये समझिए कि जादू हराम है, जादू
حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا نمبر 1۔ نمبر 2 والسحر، جادو۔ جادو یہ انسان کے اعمال کو برباد کی، جادو حرام ہے۔ اب جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں میں آپ کو بتلاؤں۔ پہلی بات، جادوگر کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شیطان کی بات مانتا ہے، اور شیطان جب تک انسان سے 3 کام کرا نہیں لیتا تب تک انسان کا تابع نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے جو لوگ آپ کے اورنگ آباد میں کہتے ہیں موکل ہمارے پاس ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس جن ہے تو تم عوام کے جیبوں کو کیوں لوٹتے ہو؟ جن سے بولو نا کوئی بینک لوٹ کے نہیں سمجھے؟ جب جن کے اندر اتنی طاقت ہے تو کسی بھی بینک کے خزانے کو لا کے تم کو دے کے ارب پتی بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ تم عوام کے پیسوں کے محتاج کیوں ہو؟ فیس کیوں لیتے ہو؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ تو بتلا یہ رہا تھا کہ شیطان انسان کے تابع کب ہوتا؟ 3 کام کراتا۔ اسی لیے آپ نے کہیں کہیں سنا ہوگا کہ بعض ملا حضرات جو ہے سامنے والے سے کیا مانگاتے؟ کالا مرغا لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ کالا مرغا۔ وہ کالا جادو ہے، کالا مرغا سفید مرغا، یاد رکھیے گا۔ وہ کالا مرغا لا کر کے وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ فلاں دیول پر فلاں درگاہ پہ لے جا کو اس کو ذبح کراؤ، گویا پہلے شرک کراتا۔ کیا کراتا؟ شرک۔ جب آپ شرک کر لیں گے تو ظاہر بات ہے شیطان کے بھائی بن گئے۔ تو پہلا کام شرک کراتا۔ جادوگر، جتنے جادوگر ہیں پورے دنیا میں، آپ ان کی حقیقت پر غور کریں گے تو یہ 3 بیماریاں ان میں پائیں گی۔ پہلا نمبر مشرک، پکا شرک کرنے والا ہوگا۔ نمبر 2 بدکاری، یہ کراتا۔ نمبر 3 حرام غلیظ چیز کھلاتا۔ یہ 3 چیزیں وہ کھا لیتا تو بولتا تم ہمارے مرید ہو گئے، اب ہم تمہارے مرید ہیں، اب تم جو کہو گے ہم تمہاری کریں گے۔ اب اس کے نتیجے میں ایک بات اور بتلاتا چلوں، موکل جو ہے ہمارے موکل ہم کو بتا دیتا فلاں چیز کا، یاد رکھیے گا جنات بھی غیب نہیں جانتے، جنات بھی غیب نہیں جانتے۔ دلیل حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر میں جناتوں کو لگا دیا تھا، لیکن ان کی موت کا وقت آ گیا، ملک الموت نے روح قبض کر لی، فلسطین کی تعمیرات میں کچھ حصہ باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو ان کی لاٹھی کے سہارے کھڑا کر دیا۔ نہیں سمجھے؟ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، جن کیا سمجھتے حضرت سلیمان نگرانی کر رہے ہیں، بناتے رہے۔ جب مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لاٹھی میں ایک کیڑا دیمک لگا دیا، جس کی وجہ سے ان کی لاٹھی کمزور ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ قرآن نے بڑا اچھا منظر پیش کیا ہے۔ جناتوں نے کہا اگر وہ غیب جانتے تو اتنے دنوں تک اس مصیبت میں نہ رہتے۔ قرآن نے گویا واضح کر دیا کہ جن غیب نہیں جانتا۔ اب یہ لوگ ہمارا موکل ہم کو بتا دیتا فلاں جگہ ہے فلاں جگہ، یہ سب ڈھکوسلیں، نہیں سمجھے؟ اور ڈھکوسلے کے ساتھ ساتھ یہ وہمی خیالات جو میں نے آپ کو بتلایا کہ آدمی خواب میں دیکھتا میں لندن کی کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، صبح اٹھتا تو کہاں ملتا؟ اپنے بستر پر ملتا نہیں۔ تو ایسے یہ خیالات ہیں جو انسان کو بھٹکاتے رہتے ہیں اور انہی خیالات کے چکر میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے جادو کالا اور سفید نہیں ہوتا، جادو جادو ہے اور وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس کے اثرات سب سے پہلے بے نمازیوں پر ہوتے ہیں۔ نماز کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اگر کسی نے جادو بھی کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز اور قرآن کی تلاوت کے بدولت آپ کے جادو کے اثرات کو ظاہر کر دے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی ہے کچھ تو قرآنی آیات کے ذریعے دم کر کے آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے آپ کتاب خریدیے، جادو کی حقیقت اور اس کا علاج ہر گھر میں رکھیے۔ جہاں بھی آپ کے دماغ میں شیطان شک لے کر آئے آپ تجربے کے طور پر وہ کام کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم مسلمانوں کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بھائی نے سوال دیا والدہ کی قبر نہ معلوم نہ ہو تو دعائے مغفرت کیسے کریں؟
मेरी वालदा मरहुमा दूसरे शहर में दफन है और मैं वहाँ से दूर दूसरे शहर में रहता हूँ। मैं अक्सर उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करता रहता हूँ। मेरी बदनसीबी ये है कि मैं उनकी कब्र पर कभी नहीं गया। मालूम ये करना है कि कब्र पर जाना ज़रूरी है या नहीं, और कब्र पर न जाने से घर पर ही दुआएं करना बेकार तो नहीं। दूसरे ये कि कब्रस्तान अगर जाऊं भी तो वालिदा की कब्र का पता नहीं, तो कब्रस्तान में जाकर वालिदा के लिए कहाँ खड़ा होकर दुआ करूं? क्या वहाँ कुछ पढ़ना होगा या ऐसे ही दुआए मग़फ़िरत करें? जवाब: अगर आपको वालिदा की कब्र का पता ही नहीं तो जाने का मशवरा कैसे दूं? अलबत्ता आपको निशानी रखनी चाहिए थी, या अगर कोई आदमी जानने वाला है तो आप इससे पता कर लीजिए। कब्र पर जाने से मैयत को इतनी खुशी होती है कि जितना माँ को अपने बेटे से मिलकर। अभी हवाला क्या है अल्लाह को मालूम। बहरहाल उनको पढ़कर बख्शते रहना चाहिए, ये भी बेकार नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से शख्स आए और कहने लगे कि हमारे वालिद का इंतकाल हो गया है, मैं उनको सवाब कैसे पहुँचाऊँ? अबू दाऊद की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरीक़े बतलाए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। और दुआए मग़फ़िरत के लिए कब्र ही पर जाने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए। नंबर 2, उन्होंने जो वादा किया है उस वादे को पूरा कर लेना। नंबर 3, उनके दोस्तों, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। ये है उनको सवाब पहुँचाने का बर्दाश्त। हदीस के ज़ख़ीरे में आप देख लीजिए, इन्होंने दुआए मग़फ़िरत के लिए सवाल किया, उतना ही है। ना आपको खिलाने का मिलेगा, ना आपको कुरान ख़्वानी का मिलेगा, ना आपको कोई और नज़रात मिलेंगे। याद रखिए, कुरान ख़्वानी, पहली बात तो अशरफ अली थानवी ने बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा 6 में ख़ुद वाज़े कर दिया है कि जो औरतें लोग मौलवियों को दे करके पढ़ाती हैं उनको कोई सवाब नहीं मिलता, इसलिए कि ले करके पढ़ना, उजरत लेकर, ना पढ़ने वाले को सवाब मिला, ना जब पढ़ने वाले को सवाब नहीं मिला तो दूसरे को सवाब क्या बख्शा जाएगा। और होता क्या है, ये सिर्फ खाने पिलाने का एक ढोंग है। अकबर इलाहाबादी ने ऐसे ही मौके पर कहा था, बताएं आपको मरने के बाद क्या होगा? पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगा। इसलिए हमें अगर अपने मरने वालों को सवाब पहुंचाना है, उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है दुआए मग़फ़िरत। इन्होंने मिसाल दी है माँ को बाप बेटे से मिलने की। हदीस में जो अल्फाज हैं कि जब कोई अपने मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है तो उसको बहुत खुशी होती है, ऐसे ही जैसे कि कोई डूबने वाला हो और उसको तिनके का सहारा मिल जाए तो सोचता है कि अब मुझे इस तिनके के ज़रिए डूबने से बचा लिया जाएगा। यही कैफियत होती है भाई, माँ को बेटे से, इसकी हदीस में नहीं, तिनके का सहारा जैसे डूबने वाला हो, ऐसे ही मतलब ये होता है कि मैयत के हक़ में दुआए मग़फ़िरत। लेकिन उसके लिए भी शर्त है, याद रखिएगा, आप हर कसो नाकस के लिए भी दुआए मग़फ़िरत करते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं। पहली चीज़ ये है कि मरने वाला तौहीद परस्त मरा हो तो। अगर वो मुशरिक था, शिर्क के आलाइशों में मुब्तला था, अब रातों दिन दुआए मग़फ़िरत करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कुरान ने कहा, मा कान लिन्नबी वलल मुमिनीना अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीना वलौ कानू उली क़ुरबा। नबी और मोमिनों की शान के लायक नहीं है कि वह मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अगरचे उनके करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। मालूम हुआ कि हमारी दुआए मग़फ़िरत सिर्फ उन्हीं के हक़ में होगी जो तौहीद परस्त होंगे। अब आप जो है मदर टेरेसिया के लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे, राजीव गांधी और फलाने गांधी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें तो हुकूमत को आप खुश कर सकते हैं, लेकिन दुनियावी एतबार से तो आप दिखने में अच्छे होंगे, उखरवी एतबार से आप ठोके जाएंगे, इसलिए कि आपने बेमौका बेमहल दुआ की है और बेमौका बेमहल जानते बूझते गलत जगह पर आपने दुआ को इस्तेमाल किया है। इसलिए हमें दुआ मग़फ़िरत का हुक्म है, लेकिन तौहीद परस्ती सबसे पहली चीज़ है कि हम जिसके लिए दुआ मग़फ़िरत करें तौहीद परस्त हो, एक अल्लाह पर ईमान और यकीन रखने वाला हो। अगर वो मुशरिक था, बदअक़ीदा था, तो हज़रत इब्राहीम अपने बाप आज़र को नहीं बचा सके, अल्लाह के आखिरी नबी अपने चचा अबू तालिब को नहीं बचा सके, तो हमारी दुआ मग़फ़िरत उसके लिए कोई माना नहीं रखती है और हमारी दुआएं बेकार हो जाएंगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।